Hello everyone, welcome back to my channel, or if you're new here, welcome to my channel. I go by Gaia on this channel, and for today's video we're going to be talking about a concept that I made up called mental vomit. I'm going to be switching languages. I'm going to be talking in Hindi as well as in English. This is a format that I'm trying and I would love to know what all of you think about it. I would love to know अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी बात करूं, हिंदी में भी कंटेंट डिलीवर करूं, आप कमेंट्स मुझे ज़रूर बता सकते हैं. Before we begin the video, please like, share and subscribe to this channel, and please like the video, please comment. इससे मेरी engagement बढ़ेगी और मुझे पता भी चलेगा कि आपको मुझसे कौन सा किस टाइप का कंटेंट चाहिए. तो without further ado, let's begin. I'm going to be explaining the things that I'll be talking about in Hindi. I'll explain that in English, and I'll explain the things that I talk about in English in Hindi as well. We'll start with English first. Mental vomit is a concept that I made up to sort of understand the importance of letting things out of your system, which I find very, very encouraging and very, very effective as a mechanism to sort of let things go. जैसे हम जब छोटे होते हैं या फिर when we're sick, हमें उल्टी जब होती है, इट्स बिकॉज हमारी बॉडी में कुछ ख़राब हो गया है, जैसे हमारा पेट ख़राब हो गया है या फिर कुछ गलत हो रहा है हमारी बॉडी के साथ, जिसकी वजह से उल्टी करने की एक प्रक्रिया से आर बॉडी इज़ टेलिंग अस कि नहीं, हम ठीक नहीं हैं. आर बॉडी इज़ वे ऑफ टेलिंग अस दैट वी आर नॉट ओके इज़ टू डू उल्टी. And there's a way that our mind also tells us that we're not okay through ulti. But mind's ulti looks like crying, looks like being tired, feels like you've woken up from a long nap and you still feel tired. You still feel like you haven't rested enough. You still feel not enough in your heart, mind, and soul. That is mental ulti. That is your mind telling you that what you're doing right now is not working. There's something in your mind that is going wrong. There's something in your mind that needs help. So that is mental ulti. और जैसे हम फिज़िकल उल्टी करने के बाद हमें अच्छा लगता है, जैसे कभी किसी को बहुत खांसी हो गई तो खांस के जो उल्टी निकलती है उसमें सारा कफ निकल आता है, तो उसमें जो वट एवर इज़ बैड इन योर बॉडी इट कम्स आउट थ्रू द puke or the vomit that you do. वैसे ही whatever is bad for your mind also comes out through the mental vomit, like crying or outbursts that one has. लेकिन mental vomit को अगर ठीक से किया जाए तो it stops being vomit and it becomes an excretory process. जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको उल्टी ना हो तो you take care of yourself. आप यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आप वर्कआउट करते हो, आप खाने पे ध्यान देते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हो ताकि आपको उल्टी ना हो. इसकी वजह से क्या होता है, आपका एक्सक्रीशन ठीक से होता है, यू यूज़ द बाथरूम एवरी मॉर्निंग, योर बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली, योर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस प्रॉपर्ली. यही प्रोसेस आपको अपनी माइंड के लिए भी करना बहुत ज़रूरी है. So that instead of mental vomit, it becomes mental excretion, which is also important. Just the way you excrete every day in the morning, you need to excrete mentally also every day in the morning. वरना कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और फिर आपका माइंड सांस नहीं ले पाएगा. एंड दैट इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट टू डू. वी वॉन्ट यू टू बी एबल टू थिंक फ्रीली एंड फील फ्रीली एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली. तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये वॉमिट जो है, ये मेंटल वॉमिट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है और उसको मेंटल एक्सक्रीशन में कैसे बदलना है. ओके, फर्स्ट ऑफ, अगर आप कोई चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, जैसे किसी ने आपको गलती से इग्नोर कर दिया लेकिन आप एकदम ज़्यादा ट्रिगर हो गए और आप रोने लग गए या आपको बहुत गुस्सा आ गया एंड यू वांट टू थ्रो थिंग्स अराउंड, आपको लग रहा है कि कुछ फेंकना है या फिर चिल्लाना चाहते हैं या फिर जस्ट इमीडिएट बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपके बॉडी में हो रहा है एंड इट्स नॉट मेकिंग यू फील गुड, इट्स लाइक अ बैड बर्स्ट ऑफ एनर्जी, तो दैट इज़ मेंटल वॉमिट. अगर रात को जब आप सोने की कोशिश करते हो, आई एम सॉरी मैं बहुत
हिल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े मच्छर है, प्लीज़ बेयर विथ मी, देयर इज़ अ बंच ऑफ मॉस्किटोज अराउंड एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू लेट देम बाइट मी, तो उसकी वजह से थोड़ा आई कीप मूविंग, दैट्स व्हाई द कैमरा कीप्स मूविंग, बट आई प्रॉमिस आई एम गोना गेट अ ट्राइपॉड सून सो दैट द कैमरा, माई हैंड डजंट हैव टू बी द मूविंग ट्राइपॉड. एनीवे, कमिंग बैक, when you're sleeping at night, जब आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हो, तो if you feel like crying, you cry yourself to sleep, this is a type of mental vomit, because it's your mind telling you that something's not right, something doesn't feel right in your heart, in your body, in your mind. All of that is mental vomit. जब आप, when you go around in the world, तो क्या आप एकदम, do you get startled very easily? क्या आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो या सहमे हुए रहते हो आप? All of this constitutes as mental vomit. ये सब एक मानसिक उल्टी के प्रकार है and there are symptoms of it. और मैं एक, this is a little too much information, लेकिन मैं एक एक्सरसाइज करती हूँ अपने आप के साथ, जो मैंने, I just made it up, जो मैंने ऐसे ही बना दिया और मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं आपके साथ भी वो शेयर करना चाहूँगी. एवरी डे इन द मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ एंड आई फील लाइक से मुझे एक बहुत बुरा सपना आ गया एंड मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट ड्रीम, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा. मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जो परिवार वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, या कोई भी इंसान इस दुनिया में, मेरा ये मानना है कि सबका अच्छा ही होगा और सबका अच्छा होना चाहिए. तो अगर मेरे सपने में कुछ बुरा आता है और मुझे उसके बारे में अच्छा नहीं लगता, आई डोंट वांट टू कैरी दैट फीलिंग इन माई हार्ट एंड माई माइंड द एंटायर डे. और वो अवॉइड करने के लिए, वो निकालने के लिए, वो मेंटल एक्सक्रीशन करने के लिए पहले, ताकि वो बाद में जाके मेंटल वॉमिट ना बन जाए, मैं एक एक्सरसाइज करती हूँ. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर अ ड्रीम. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ से संडे को कुछ हो गया, किसी के साथ आपका विवाद हो गया या फिर कोई ऐसा हादसा हो गया जिससे आप बहुत ट्रिगर हो गए और आप वो सब बिना समझे, वो सब बिना एक्सक्रीट करे ही सो गए, तो दूसरे दिन मंडे को जब आप सुबह उठेंगे, you are going to feel that heaviness in your mind and your body, and you need to excrete that out mentally so that you can let it go. I'm not sure if people watching abroad will resonate with the example I'm about to give, but I'll try and explain it as easily as possible. Sorry, there's just one mosquito that has found my legs quite attractive and won't stop biting it. Sorry. Okay. All right. The example is, so in India, there are multiple types of firecrackers, right? One of the type of firecrackers is called, it's like a small little thing in Marathi, my regional language. It's called apti bomb. It literally translates to something that's slammed on the ground and it bursts. It's like a tiny little thing, and the burst is basically like a tiny spark. And I treat my bad thoughts, like the things I want to mentally excrete, I treat them as apti bomb. I treat it as something that I can just throw on the ground and it'll burst. And I conveniently behave as if, oh my God, it was a bad thought that I threw on the ground, thinking I was just curious to know what happens. And after I throw a bad thought on the ground, and it just bursts, so I can't think it anymore. It's a convenient explanation that I use for my mind to sort of let it go, let the bad thoughts go, so that it helps me mentally excrete everything that I want to, get out of my mind. It is very important to feel with your entire body because it helps to get things out of your system very quickly. जब आपको कुछ बहुत इंटेंसली फील होता है या कोई ऐसा हादसा या ऐसी घटना आपके साथ होती है जिसकी वजह से आपको बहुत सदमा पहुंचाए, या फिर ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द मिला है, समथिंग दैट हैज़ अफेक्टेड यू डीपली, वो आपकी बॉडी में एक जगह बना लेता है.
इसके बारे में रिसर्च पेपर्स भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूँगी। कोई भी इंटरेस्टेड हो वो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। आई एम गोना लिंक अ बंच ऑफ रिसर्च पेपर्स डाउन इन द description box, talking about so the research papers that I'll be linking in the description box talk about how trauma gets stored in the body and how you can undo it or how you can just eradicate it or let it go. So coming back, it's very easy to आइडेंटिफाई कि कहाँ से आपको दर्द महसूस हो रहा है। अगर आपके लिए मेंटल वॉमिट कर या मेंटल एक्सक्रीशन बहुत इट्स टू मच, आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रम की बात हो रही है, if it's too exhausting and it's too much effort for your mind and body to take at that moment, मैं समझ सकती हूँ ये बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में काम, पढ़ाई, लोग, ये चीज़ें नहीं हैं। आई एम श्योर सबके साथ जब आप ज़िंदगी जीते हैं सबके साथ, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ, आपके साथ उनके भी बहुत प्रेशर्स होंगे जो आप पे रिफ्लेक्ट होते हैं, आपके प्रेशर्स होंगे जो उन पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आई नो कि आपका गुजरा हुआ ट्रॉमा इज़ इन द ओनली थिंग एंड आई नो दैट इट्स हार्ड बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जब आपको अगर ऐसे लगे कि ओ माई गॉड इट्स टू मच फॉर माई बॉडी टू understand, it's too much for my body and mind to pay attention to and heal at the moment for the trauma that you feel. One very easy way of understanding mental vomit and mental excretion and going ahead and identifying it is to breathe. आपको सिर्फ सांस लेनी है और सांस एकदम धीमी और एकदम गहरी सांस लेते रहनी है। And you need to follow your breath to wherever it hurts or wherever it takes you. तो जैसे अगर ऐसे कहते हैं जो there's a book that's on my list, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, अगर किसी ने पढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में tell me about it. There's a wonderful book called The Body Keeps Score, and वो मुझे पढ़नी है. That is about how trauma gets stored in the body and how it can be eradicated, how it can be dealt with. तो जैसे कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज़िंदगी में उम्र से पहले इफ़ यू बिकम टू रिस्पॉन्सिबल टू अर्ली इन लाइफ, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार बन गए हो जब आप बच्चे थे तब, तो आपके कंधे और आपकी पीठ दर्द करती है। अगर आपका नेचर बहुत गुस्सैल है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और आप गुस्से से बात करते हो या फिर गुस्सा आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आपका पेट दर्द होता है या फिर आपका लिवर दर्द करता है या ऐसा कुछ, तो आप गहरी सांस लीजिए, टेक डीप ब्रेथ्स एंड फॉलो द फीलिंग एंड आस्क योर बॉडी. अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इफ़ यू नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेयर अ फीलिंग इज कमिंग फ्रॉम फॉर द प्रोसेस ऑफ मेंटल एक्सक्रीशन और मेंटल वॉमिट, that's all right. You can actually ask your body, you can actually talk to your body as like a second person, like a two-person dialogue. You can have a two-person dialogue with your body and ask your body ki okay, I'm breathing and I want to help you because you are helping me. Can you tell me where it hurts so that we can figure it out together? आप ये एक्चुअली में अपने बॉडी के साथ ऐसे बात करके फिगर आउट कर सकते हैं कि व्हाट यू फीलिंग, हाउ यू फीलिंग इट, व्हाट हेल्प डू यू नीड विद इट, आपको कहाँ दर्द हो रहा है. आप अपनी बॉडी से एक्चुअली बात करके ये फिगर आउट कर सकते हैं. ये आपके लिए बहुत शायद वियर्ड होगा या फिर सुनने में अजीब लग रहा है या फिर करने में भी अजीब लग सकता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है. अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें अजीब लगती है और उसमें कोई ख़राबी नहीं है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट यू आर द ओनली वन that will always really understand what's going on with your body, because you are the only one who lives in your body. Nobody else lives in your body, only you live in your body. It's very important for you to know what's going on in your mind and your body so that you can figure it out before someone else does and either takes advantage of it ya koi bhi, but that is afterthought. First of all, it is your body, it is your mind, it is your soul, and this is one life that you have. तो आप ये ज़िंदगी
अपनी बॉडी के अगेंस्ट बिताना चाहते हैं या आप अपनी ज़िंदगी बॉडी के साथ दोस्त बनकर अपनी बॉडी को समझकर अपनी बॉडी को हील करके जीना चाहते हैं, इट्स ऑन यू, आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं मेंटल वॉमिट के बारे में और मेंटल एक्सक्रीशन के बारे में जो मैं कहना चाहती थी, मैं आप सबको बताना चाहती थी। बस उतना ही था। लेट मी नो इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू बॉडी हीलिंग more than mental healing, but I strongly believe that mind and body go together, and अगर आपको माइंड को हील करना है तो आपको बॉडी को हील करना पड़ेगा, और आपको अपनी बॉडी को हील करना है तो you'll have to heal your mind. It's very codependent, you need to heal both of them together. एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, अगर यू वांट मी टू मेक मोर कंटेंट अबाउट दिस, लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो एनी टॉपिक्स दैट यू हैव, एनी सजेशंस दैट यू हैव, एनीथिंग you want to share. You can tell me anytime. You can reach out to me on my Instagram handle that I will also link in the bio anytime. I'll also link my Snapchat, so you can DM me there if you want. कोई दिक्कत नहीं है, I'll always be here for you. We are a team, एंड हम यहाँ आए हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए और ख़ुद को मदद करने के लिए और खुशियाँ बांटने के लिए और ख़ुद खुश होने के लिए एज वेल, एंड वी आर ऑल हियर टू ग्रो टुगेदर, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. लव योरसेल्फ, keep growing, and keep trying to understand yourself and other people around you, because that is ultimately what matters the most. Alright, that's it for today's video. Like, share and subscribe, and if you have anything that you want to share, please don't hesitate to either DM me on Instagram or you can put it down in the comments. That's not a problem. I will see you guys in the next video. Bye bye. Love you.